Vi slutter med videoprogrammet Skolen i hverdagen i Ishøj. Udsendelsen er indtalt på Urdu. God fornøjelse og på gensyn om en uge. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں نرسری سے 10ویں کلاس تک ڈینش اسکولوں کے طریقہ کار کے متعلق بتایا جائے گا۔ ویڈیو فلم کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو میٹنگوں میں بحث کا موقع دیا جائے۔ بحث کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے اچھے مشورے حاصل کر سکیں۔ اس فلم کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ اسکول کے طریقہ کار میں حصہ لینا کتنا ضروری ہے۔ آئیے عیسائی کے اسکولوں سے متعارف کرائیں۔ عیسائی اسکول، کلپو اسکول، سٹانکان اسکول، وبہالم اسکول، وائلپو اسکول۔ سٹانکان اسکول کی عمارت ایک شہر کی طرح ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں جو چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے نئے قانون کے مطابق شاگردوں کو مکمل تحفظ مل سکے۔ آئیے ہم اب آپ کو چھٹی اے کے طالب علموں کے پاس لے چلیں۔ ڈینش پہلی سے 10ویں کلاس تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ Blive 30 år af de 400 mennesker, der blev ramt, at her indgreb bliver 125 dræbt. Rejer har levet i 350 millioner år. Hvaler er den største, og det er, at spækhuggerne lister sig ind til kysten på steder, hvor sælerne har samlet sig. Og når sælerne opdager spækhuggerne, bliver de skræmt fra vildt og springer ud i vandet i panik. Og det var lige akkurat, at spækhuggerne ville have dem til. 10ویں کلاس تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ Så jeres matematikbøger frem, og så skal I slå op på side 85 i grundbogen og 75 i opgavehæftet. Og der skal vi lave ragen nedenunder A-opgaven på side 85. ورزش اسکول کے انتظام کا ایک حصہ ہے جس میں ہر طالب علم کا حصہ لینا ضروری ہے۔ وہ کھیل جو باہر کھیلے جاتے ہیں وہ بھی ورزش کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں۔ دوسری سے 5ویں یا تیسری سے 6ٹھی کلاس تک تیراکی کے منظور شدہ حال میں تیراکی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول میں طالب علموں کو وہ کام بھی سکھائے جاتے ہیں جو ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، مثلا مصوری، دستکاری، لکڑی کا کام اور خانہ داری وغیرہ۔ Læg mærke til buskene. De er ikke ensfarvet som en stor flade. Se på dem. Du har lys, du har sol i dag, så du kan godt lave dem lidt bedre. Prøv hvad? Godt. Så har vi denne her. Hvem har lavet denne? Jeg kan lave dem lige så grimme. Vi har lavet grimme. Jeg var rigtig sur på dig. Nå, men de er så grimme, jeg gider ikke. Jeg har ødelagt dem. Ja.
skal jo holde sig varme, mens vi er færdige med de andre ting. ETP नर्सरी से 10वीं क्लास तक तमाम शागिर्दों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। Vist nok noget enestående i Danmark. Skal du se, nu har du et tal hernede. 21. Det skal du putte op enten der eller der. Og så bagefter skal du regne på det, sådan så det passer med det, der står herovre. Hvor synes du så, skal du sætte det til først, eller skal du sætte det sidst? Først. Okay. Så gør det op i den gode. 7वीं जमात से 10वीं जमात तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और तालिब इल्म 9वीं 10वीं जमात में इम्तहान दे सकते हैं। Først skal vi indstille apparatet, så det kun kan måle vægtespænding. Men det gør vi ikke her, fordi når vi indstiller, så gør vi ved at sætte ind her. Så har vi indstillingen. Så vi tager bare 2 ledninger. Sådan der. Der skal ikke meget spaghetti her i ledningen, så skal vi finde ud af. इसी तरह गैर मुल्की तालिब इल्मों को उनकी मादरी ज़बान की तालीम भी दी जाती है, मसलन तुर्की और उर्दू। Yazdığımızda üstünü mü yazdınız? Selamlar. Yani o deniz kenarlarındakilere denizin içine yazsanız şey gibi anlaşılır. Diğerlerinde Mesela buraya yani biraz daha yazılabilir mi? büyük harflerle uzun yazarsanız belli olur tek bir şekil değil de böyle olur. Ya da sonuna B derseniz gene tamam gerisine geç. Onda da işte dağ, göl Öğretmenim. ve O da Yunanistan yazamıyor, Yunan yazdı. Yeter mi onu? खूब सफर इसके अलावा हमारे स्कूल के निज़ाम में दूसरे मज़ामीन भी हैं। लेचुआ और तकनीक ये नए मज़मून हैं। तारीख़, बायोलॉजी, जोग्राफिया, माशरती इल्म, फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेज़ी ऐसे मज़ामीन भी हैं जो तालिब इल्म 8वीं जमात में अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करते हैं, मसलन ECP, इलेक्ट्रॉनिक, लकड़ी का काम, फ़ोटो वगैरह। क्या आपके ख्याल में स्कूल में और मज़मून होने चाहिए? क्यों नहीं? आपके ख्याल में कौन सा नया मज़मून होना चाहिए? हमने गैर मुल्की बच्चों के लिए जो डेनमार्क में नए आए हैं उनके लिए भी क्लासें खोली हैं जिन्हें विजिटेशन क्लास कहते हैं। Det kan få køleskab, ja. हमारे 4 स्कूलों में तमाम शागिर्दों के लिए कैंटीनें भी हैं। यहाँ से तालिब इल्मों को ख्वाह वो क्रिश्चियन हों या मुसलमान उनको अच्छा खाना मिलता है। आइए अब हम देखें वायलेपुर स्कूल की कैंटीन में कौन कौन सा खाना मिल सकता है। क्या आप बताएंगे कि आपको स्कूल में कैसा खाना मिलता है? क्या आप घर से खाना लाती हैं या यहाँ से खरीदती हैं? नहीं, मैं यहाँ से खरीदती हूँ। क्या आप कभी घर से खाना नहीं लाती? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं होता। आपके ख्याल में कैंटीन का खाना कैसा है? क्या मज़ेदार है? हाँ, मज़ेदार है। खाने की कीमतों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मुनासिब है,
महंगा नहीं है। क्या मुसलमान भी यहाँ से खाना लेकर खा सकते हैं? हाँ, अंडे, मछली वगैरह के पीस मिल जाते हैं। क्या आपके ख्याल में खाना इतना मिल जाता है जिससे पेट भर सके? हाँ, यहाँ से कई किस्म का खाना मिल सकता है। क्या कैंटीन में खाने और पीने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए? क्या पहली से 10वीं क्लास तक शागिर्द वर्जिश में हिस्सा लेते हैं? क्या आप अपने बच्चे की वर्जिश और तैराकी की तालीम के मुतालिक जानते हैं? क्यों नहीं? इनके अलावा क्लासों की और भी मसरूफियात हैं, मसलन 1 दिन का टूर, 3 दिन का टूर, 1 हफ्ते का टूर। ये मसरूफियात लाजमी हैं, इनमें हिस्सा लेना ज़रूरी है, इसलिए कि इस तरह से तालिब इल्मों को मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है और वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो ये चीज़ें जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उन चीज़ों के मुतालिक इन मसरूफियात से उन मनाज़र को खुद देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, इसलिए इन मसरूफियात में हिस्सा लेना लाजमी है। Vi hedder Jens og Arne, og vi skal vise jer rundt her på Frederiksberg. Jeg tror, vi er blevet enige om, at vi deler jer op i 2 hold. Fordi det, I skal se, det er, I skal først ind i stallen og kigge nogle af jer. Og så ned og kigge på et område, vi har med kaniner og høns og geder bagefter. Så må I prøve at og I skal også ned til de andre buer, der er også andre, der har små. टूर तालीम का लाजमी हिस्सा क्यों है? क्या आपके पास टूर पर जाने के मुतालिक कोई मशवरा है? वो तालिब इल्म जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका गैर मुल्की सफ़र भी तालीम का एक हिस्सा है और वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जैसा कि स्ट्रानगन स्कूल की 10वीं क्लास हॉलैंड और बेल्जियम जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। Der er 2 dage tilbage, så skal vi jo rejse. Vi skal lige have planlagt vores mad i Holland. Belgien skal vi jo spise på vandrehjem. Men i Holland skal vi selv lave maden, og derfor er I delt op i 4 grupper. Og I har et hæfte hver gruppe, og så skal I lave 2 menuer, 2 forslag til menuer i Holland. Og det er aftensmad, vi skal lave. Morgenmad, vi skal nok finde ud af. Og vi spiser jo nok på skolen, når vi skal være der i hvert fald, og ellers så er vi jo på tur om eftermiddagen. I skal have ingredienserne med, det vil sige, at I skal skrive op, hvad I skal bruge af forskellige ting til at lave det med. Og det har I så, hvis I vil have forret, må I gerne det. Hovedret skal vi jo have alle sammen. Og I må så også godt lave det selv. Nej. आपकी क्लास हॉलैंड और बेल्जियम की तैयारी में मसरूफ है, क्या आप साथ जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे। ये हमारी तालीमी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? यूरोप के नौजवानों के मुतालिक। ये एक बहुत अच्छी बात है, इस तरह से हमें नए नए दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। अगर हम 10वीं जमात में दाखिला लें तो सब मजमूनों में हिस्सा लेना लाजमी है। वहाँ पर सैर तफरीह के अलावा नए दोस्त मिलते हैं। सैर के अलावा हम वहाँ तालीम भी हासिल करते हैं, बायोलॉजी, हिसाब, हॉलैंड, जर्मन, अंग्रेज़ी वगैरह। नए दोस्तों से खत किताबत भी रख सकते हैं। 10वीं जमात का उस्ताद जो भी प्रोग्राम बनाए उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है।
अब रमज़ान का महीना शुरू है, क्या आपको वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम रोज़े भी रखेंगे और ईद भी मनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम ईद के बाद रोज़े रखें। क्या आप वहाँ वक्त पर खाना खा सकेंगे? जो रोज़ा नहीं रखेंगे वो उसी वक्त खाएंगे जब दूसरे खाएंगे। हमारे उस्तादों ने वादा किया है कि वो हमारे साथ खाना बनाने में मदद करेंगे जो रोज़ा रखेंगे। आपके वालिदैन इस लंबे सफ़र पर जाने के मुतालिक क्या कहते हैं? मैंने जब अपने वालिदैन को बताया तो वो खौफज़दा हुए और कहा कि इतनी दूर क्यों जा रही हो। मैंने वालिदैन को बताया कि ये हमारी तालीम का एक हिस्सा है और इम्तहान में भी इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। इस पर वालिदैन मुझे भेजने पर राज़ी हो गए। मेरे वालिदैन इस सफ़र के ख़िलाफ़ नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी तालीम का एक हिस्सा है। मेरे वालिदैन भी इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, इसलिए मैं भी इसमें हिस्सा ले रही हूँ। इस सफ़र के दौरान अपने मज़हब की कैसे पाबंदी करेंगी? ये हमारी मर्ज़ी है कि सफ़र के दौरान किस तरह पाबंदी करनी है, रोज़ा रखें या नहीं। सफ़र की यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हम रोज़े की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। आपके दोस्तों का इस सफ़र के मुतालिक क्या ख्याल है? कुछ दोस्त खुश हैं और कुछ हसद करते हैं। हसद की वजह वालिदैन की तरफ से इजाज़त ना मिलना है, और जब मैंने बताया कि मुझे इजाज़त मिल गई है तो वो हैरान रह गए। मेरे दोस्त खुश हैं कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मगर वो भी थोड़ी हसद करते हैं क्योंकि वो कभी इस तरह के सफ़र पर नहीं गए। जिस तरह हम 15 दिन के लिए बेल्जियम और हॉलैंड जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उनके हसद की वजह उनके वालिदैन हैं जो मजहबी अकायद के पाबंद हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वालिदैन को इजाज़त दे देनी चाहिए, जबकि हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं पर हम अपना मुस्तकबिल गुजारेंगे। मैं समझती हूँ कि वालिदैन इजाज़त क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सैर व तफरीह है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारी तालीम का हिस्सा है। जब हम क्लास में अकेले हों तो वालिदैन कहते हैं नहीं जा सकते, अगर ज़्यादा हों तो कहते हैं चली जाओ। बहुत से वालिदैन इसके मुतालिक इल्म नहीं रखते, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। हो सकता है कि उनके तालीमी ज़माने में ऐसे सफ़र ना हो और ये उनके लिए नई बात है, इसलिए लड़कियों को खासकर इजाज़त नहीं देते। अब चूँकि हमारे उस्ताद हमारे साथ हैं, इसलिए हम इस सफ़र पर जा रहे हैं। क्या आपकी बेटी या बेटा पिछले 1-2 साल में 3 दिन के टूर या 1 हफ्ते के टूर पर गए हैं? क्यों नहीं? क्या 1 हफ्ते का टूर या तालीबी सफ़र स्कूल निज़ाम का लाजमी हिस्सा नहीं है?
क्रिश्चियन, आप मुख्तलिफ कल्चर के शागिर्दों के साथ क्लास में हैं। क्या आप बताएंगे कि आप रोज़मर्रा मुख्तलिफ शागिर्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं? मेरे ख्याल में कल्चर का कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम टूर पर जाते हैं तो कुछ साथ नहीं जाते, ख़ासकर लड़कियां, और इसकी वजह मज़हब है। मेरे ख्याल में कल्चर का कोई फ़र्क नहीं है। कुछ क्लासों में ऐसे शागिर्द हैं जो साथ नहीं जाते, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ऐसी क्लास में जाती हैं जहां सिर्फ आप अलहदा कल्चर की हैं। क्या आप बताएंगी कि आप क्लास में रोज़मर्रा कैसे महसूस करती हैं? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अच्छी डैनिश नहीं बोल सकती, लेकिन मैं फिर भी लड़कियों से कभी बात कर लेती हूँ। मेरे ख्याल में कल्चर का कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हम एक ख़ानदान की तरह हैं, इसलिए मैं कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। क्या आप स्कूल के साथ कभी सफ़र पर गई हैं? मैं हर बार गई हूँ। मैं हमेशा सफ़र पर साथ गया हूँ। मैं स्कूल के साथ स्कीटिंग पर गया था, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। हमें बहुत मज़ा आया। सफ़र पुरलुत्फ़ था। बस यही था कि अपनी फैमिली याद आती थी। मेरे वालिद मुझसे हर रोज़ फ़ोन पर आधा घंटा बात कर लेते थे। मैं हमेशा सफ़र पर साथ गई हूँ। आइए अहमद से पूछें कि वो गैर मुल्की वालिदैन होने की बिना पर हमारे स्कूलों के तरीक़ाकार को कैसा महसूस करते हैं। क्या आप बताएंगे कि आप कब से डेनमार्क में हैं? मैं 1976 से यहाँ हूँ। आपकी बीवी? मेरी बीवी 1978 से यहाँ है। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, 3 बिबेहाल्म स्कूल में जाते हैं, जो कि 3री, 6ठी और 7वीं क्लास में हैं। आपका स्कूल से कैसा राब्ता है? हमारा स्कूल से अच्छा राब्ता है क्योंकि हम हमेशा मीटिंगों में जाते हैं। क्या आपके बच्चों के डैनिश दोस्त हैं और उनसे उनके कैसे ताल्लुकात हैं? हाँ, उनके डैनिश दोस्त हैं और वो अक्सर हमारे घर भी आते हैं और सोते भी हैं। कभी आपके बच्चे उनके घर सोए हैं? नहीं। क्या आपके बच्चे कभी स्कूल के साथ टूर पर गए हैं? हाँ, वो 2 दिन के टूर पर गए थे। टूर कैसे मुरतब किया गया और क्या आपको इसके बारे में बताया गया था? हाँ, इस बारे में हमें बताया गया था। बच्चे 3 दिन और 2 रातों के लिए गए थे। इसका मतलब ये है कि आपको स्कूल पर एतमाद है कि वो आपके बच्चों की अच्छी हिफाजत करते हैं। मुझे यकीन है स्कूल वाले बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि स्कूल कुछ ऐसा करे जिससे तमाम शागिर्द टूर पर साथ जा सकें?
हाँ, मेरा ख्याल है कि वालिदैन को इस बारे में बताना चाहिए ताकि वालिदैन को पता चले कि स्कूल वाले बच्चों को कैसा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इसके लिए 2 ज़बानों के उस्तादों के ज़रिए उनको बताना चाहिए। जिन टूर पर आपके बच्चे गए हैं, क्या आप इस बारे में किसी शक में मुब्तला तो नहीं हुए जिस बिना पर आपको घर पर बहस करनी पड़ी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप स्कूल के निज़ाम से तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं? क्या आपको पता है कि लाज़मी मज़मून और इख्तियारी मज़मून क्या होते हैं? 9वीं और 10वीं जमात के आखिर में शागिर्द मुख्तलिफ मज़मूनों का इम्तहान भी देते हैं। 10वीं क्लास का डैनिश का इम्तहान लिया जा रहा है। Ja, du har trukket den her tekst, Rikke. Hvad synes du om den selv, når du læser den? Hvad er din mening af danskerne, sådan som de bliver beskrevet i teksten? Både ja og nej. De fleste har nok måske, fordi de ser alt op i penge, men det er jo selvfølgelig også en fejl. Min mening er, at det er en god historie, og man lærer noget af den. For eksempel, når man kommer til en fest, og der sidder en fremmed, der ikke bliver snakket med, så må man prøve at tage mod til sig, og så prøve så godt som muligt at snakke med personen, og lade være med at se alting i penge. Altså, er vi danskere så gode til at snakke? Jo, det synes jeg i hvert fald. Altså, ligesom vores klasse var, da vi var ude på studieturen. Ja. Men der er nok nogen, der er nervøse. Jeg tror ikke at sige noget, fordi de er nervøse. Men altså, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at snakke med andre mennesker. Og specielt på engelsk. Ja, specielt på engelsk, ja. Nej, kunne det også være en dansker? Du kunne være sød ved, når du er til fest. Det behøver ikke være en udlænding. Det kan også være en dansker, der var ensom og sad der og måske så anderledes ud og havde en anden frisyr eller noget andet tøj. Ja, så snakker man selvfølgelig også med vedkommende. Det er skærligt nok at snakke med dem. Okay, godt. Vi har ikke mere. Du vil ikke noget mere. स्कूल की लाइब्रेरियां भी हमारे स्कूल का एक हिस्सा हैं, जहां से शागिर्द किताबें, लिटरेचर और तालीमी निसाब की किताबें लेकर अपने रोज़मर्रा की तालीम में उन किताबों से मदद हासिल करते हैं। यहाँ से उस्तादों को भी नई किताबों के मुतालिक मालूमात मिलती हैं, इसलिए लाइब्रेरियां ज़रूरी हैं और यहाँ अक्सर जाना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे कितनी बार स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें घर ले जाते हैं? आप खुद कितनी बार किताबें लेकर आते हैं? क्या आप अपने बच्चे के साथ पढ़ते हैं? स्कूल की तातीलात शुरू होने पर तमाम शागिर्द खुश होते हैं। छुट्टियों के दौरान रोज़ाना के काम से छुटकारा मिलता है। शागिर्दों को स्कूल के बाहर नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिलता है और फिर वापसी पर जो कुछ वो नया महसूस करते हैं स्कूल में आकर बताते हैं। छुट्टियों का कानून इस तरह है कि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने पर शागिर्द दोबारा अपनी तालीम शुरू करते हैं। इस तरह तालीम जारी रखने का मतलब ये है कि शागिर्द बेहतर तौर पर तालीम हासिल कर सकें और इस मुआशरे में बेहतर मुस्तकबिल गुजार सकें। आप एक साल में कितनी बार छुट्टियों पर जाते हैं? आप कब छुट्टियों पर जाते हैं? क्या आप अपनी छुट्टियों का प्रोग्राम खुद बनाते हैं? क्या आप बच्चों को स्कूल से निकालकर छुट्टियों पर चले जाते हैं? अब वीडियो फिल्म ख़त्म हुई। इसको बनाने का मकसद ये था कि हम बेहतर तरीके से अपने स्कूल के तरीक़ाकार को बता सकें। हमें उम्मीद है कि वीडियो फिल्म से बहस का मौका मिलेगा, स्कूल के निज़ाम को बेहतर करने के मशवरे मिलेंगे। ये बहस स्कूलों और मुख्तलिफ इदारों की ख्वाहिश थी। हम वाकई दिलचस्पी से आपके जवाब के मुंतज़र हैं। वो जवाब जो हमें मीटिंगों से हासिल होंगे उससे हम स्कूल के निज़ाम को बेहतर करेंगे। अगर कोई अपना मकसद जाहिर करने में दिलचस्पी रखता हो तो वो स्कूल में टेलीफोन पर राब्ता कायम कर सकते हैं या मुझे दफ्तर में फ़ोन कर सकते हैं।
हम आपको हमेशा खुश आमदीद कहेंगे और स्कूल निज़ाम के बारे में बातचीत करेंगे। Man er altid velkommen til at ringe og få en snak om vores skolevæsen. आपने कब पिछली दफ़ा अपने बच्चे से बात की थी कि वो क्या करते हैं?